السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میرے چاچو کی شادی میری اپنی سگی خالہ سے ہوئی تھی۔ نکاح تو ہو چکا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس گھر پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ جب میں شادی کے ہنگاموں میں مصروف تھی کہ اچانک میری والدہ نے میرا ہاتھ کھینچا اور مجھے ایک کونے میں لے گئی۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا، وحشت تھی، نہ جانے کیا کچھ تھا جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ دائیں بائیں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بہت ہی راز کی بات ہو اور کسی کو بتانا نہیں چاہ رہی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میری والدہ کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ پریشانی کی وجہ سے انہیں دسمبر کے مہینے میں پسینہ آ رہا تھا، لیکن ایسی بھی کیا پریشانی تھی؟ میں سوچ رہی تھی آج میرے چاچو کی شادی ہوئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے چاچو کی شادی کا بہت انتظار کیا تھا۔ چاچو کی شادی کسی اور سے نہیں بلکہ میری اپنی سگی خالہ سے ہوئی تھی۔ نکاح تو ہو چکا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب میں نے امی سے پوچھا، امی کیا بات ہے، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ کیا آپ خالہ کی رخصتی کی وجہ سے پریشان ہیں؟ امی نے کہا، ہاں میں اسی کی وجہ سے ہی پریشان ہوں، لیکن مسئلہ کچھ اور ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ میں بھی امی کو پریشان دیکھ کر پریشان ہو گئی تو انہوں نے میرے کان میں سرگوشی کی اور ایسی بات بولی جسے سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میری ماں کہہ رہی تھی وہ سچ تھا۔ میری خالہ نکاح کے بعد کہیں غائب ہو گئی تھی۔ مہمان گھر میں موجود تھے، رخصتی کے لیے خالہ کو لینے آئے تھے اور اب یہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میری نانا کی عزت پر بات بن آئی تھی۔ وہ پہلے سے دل کے مریض تھے، تھوڑی سی بھی تکلیف اور پریشانی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی تو وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر آئے تھے، مہینہ ہی ہوا تھا۔ نانا کا گھر مہمانوں اور باراتیوں سے بھرا پڑا تھا اور اب یہ مصیبت سر پہ آ گئی تھی۔ میں نے اپنے چاچو کی طرف دیکھا جو بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میرے چاچو کی عمر 30 سال تھی اور میری خالہ کی عمر 25 سال تھی۔ میرے چاچو نے میری خالہ کو دیکھا اور پسند کیا اور یوں یہ رشتہ ہو گیا۔ لیکن مجھے اندازہ تھا کہ خالہ اس شادی سے کچھ خاص خوش نہیں ہے۔ میری والدہ اور خالہ کے مابین کچھ جھڑپ بھی ہوئی تھی اس رشتے کو لے کر، لیکن میں اپنی دنیا میں مگن تھی تو ان سب باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میری عمر ہی ایسی تھی کہ ان چیزوں پر اس عمر میں لڑکی کا دھیان نہیں جاتا۔ اس عمر میں ہر لڑکی خوش رہنا چاہتی تھی تو میں بھی خوش تھی۔ اپنی زندگی میں 17 سال کی لڑکی کو بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی تھی گھر کے معاملات میں، لیکن میں اب حقیقی معنوں میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ میرے چاچو بہت خوش تھے۔ وہ مجھے بے حد عزیز تھے، مجھے میرے والد سے بھی زیادہ میرے چاچو عزیز تھے۔ ہم دونوں کے مابین بہت دوستی تھی۔ میرے چاچو سعودیہ کمانے کے لیے چلے گئے تھے اور اب شادی کرنے کے لیے واپس آئے تھے۔ انہوں نے خالہ کو پسند کر لیا تھا اور سب سے زیادہ اس رشتے پر میں خوش تھی کہ میرے چاچو اور میری خالہ ایک ہو جائیں گے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ خوشی عارضی ہے اور مجھ پر کتنی بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اماں نے جو بات مجھ سے کہی تھی اسے سن کر تو میری روح لرز گئی تھی۔ میری ماں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، نانا ابو کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور مجھے دلہن کا لباس پہن کر اس کے ساتھ رخصت ہونا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ ہوش میں تو ہیں، آپ کو کچھ تمیز ہے یا نہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ میرے سگے چاچو ہیں، اس کام کے لیے آپ کو میں ہی نظر آئی تھی۔ سارے براتیوں میں سے اگر خالہ کی جگہ کسی کو رخصت کرنا ہی ہے کسی اور کو دیکھیں، میں تو ان کی سگی بھتیجی ہوں۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ کی سوچ پر۔ میں نے انتہائی غصے سے امی سے کہا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ میں کس سے کہوں، یہ بات پھیل گئی تو تمہارے نانا کی اور تمہارے چاچو کی بدنامی ہوگی۔ اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی کہ دلہن نکاح کے بعد بھاگ گئی ہے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تمہاری خالہ شادی والا لہنگا پھینک کر کپڑے بدل کر گھر سے بھاگ چکی ہے۔ تم تھوڑا سا میرا ساتھ دو، میں اسے ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہوگی، وہ اپنے پرانے عاشق کے پاس گئی ہوگی۔ مجھے اس کے گھر کا بھی پتا ہے۔ تم تھوڑی سی اداکاری کر لو، میں اسے ڈھونڈ کر لاتی ہوں، بس تھوڑا سا تعاون کرو ہمارے ساتھ۔ ماں کی بات سن کر میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی ہوں۔ اگر چاچو کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید میں خاندان کی عزت بچانے کے لیے حامی بھر لیتی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن آپ سمجھ نہیں رہی، وہ میرے سگے چاچو ہیں۔ میں ان کی دلہن کا روپ لے کر کیسے اپنے ہی گھر میں داخل ہو سکتی ہوں؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر خالہ چاچو سے شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں تھی تو آپ لوگوں کو کیا ضرورت تھی زبردستی ان کی شادی چاچو کے ساتھ کرنے کی؟ اب میرے چاچو کا دل بہت برے طریقے سے ٹوٹنے والا ہے۔ تو میری والدہ نے بتایا کہ وہ جس لڑکی کو پسند کرتی تھی وہ انتہائی برا اور آوارہ قسم کا لڑکا تھا۔
लेकिन उसकी आंखों में इस घटिया इंसान की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। उसे इस लड़के के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। अब तुम खुद बताओ कि हम कैसे उसकी शादी एक आवारा इंसान से कर सकते थे। तो मैंने अम्मी से कहा कि जबरदस्ती शादी का नतीजा भी आपने देख लिया है। दोनों खानदान की बदनामी होगी, मेरे दादा के खानदान की भी बदनामी होगी और मेरे नाना के खानदान की भी बदनामी होगी। अंदाजा है इस बात का कि मेरे चाचू के दिल पर क्या गुजरेगी। मैंने अम्मी से कहा, मुझे बहुत दुख हो रहा था अपने चाचू का। खाला पर गुस्सा आ रहा था और नाना की तरफ से भी परेशानी थी। अम्मी ने मुझसे कहा कि सिर्फ खानदान की इज्जत ही की फिक्र नहीं है मुझे, बल्कि तुम्हारे नाना की जिंदगी की भी फिक्र है। बड़ी मुश्किल से वो अस्पताल से आए हैं, अब फिर से अस्पताल ले जाएंगे। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो फिर बहुत गलत भी हो सकता है। मेरी माँ कहकर रोने लगी और उन्हें रोता देखकर मेरा दिल नरम हो गया। लेकिन वो मुझसे जो कह रही थी वो मैं नहीं कर सकती थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरी माँ मेरे कदमों में पड़ गई और मुझसे कहा कि वो किसी को ये बात नहीं बताना चाहती। अब खानदान की इज्जत मेरे हाथ में है। बाहर से शोर बुलंद हो रहा था कि रुखसती की तैयारी करो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अम्मा ने जबरदस्ती मेरा हाथ खींचा और मुझे खाला के कमरे में ले गई और मुझसे कहा कि जल्दी से ये लहंगा पहन लो। मैं और मेरी माँ मजबूरी और बेबसी की इंतहा पर थे। खानदान की इज्जत बचाने के लिए मैंने लहंगा पहन लिया और घूंघट कर लिया। बाहर से मुसलसल दरवाजा बजाया जा रहा था कि दुल्हन को हमारे हवाले करो, रुखसती का वक्त निकला जा रहा है, सबको अपने अपने घर भी जाना है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। दरवाजा खुल चुका था। अम्मा ने मेरा हाथ थाम लिया और सब मुझे रुखसत करने के लिए कमरे में आ गए। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। मुझे रुखसत कर दिया गया और जब गाड़ी में बैठने लगे तो अम्मा ने कहा कि मेरी बहन मेरे साथ बैठेगी। यूं अम्मा ने चालाकी करके मुझे चाचू के साथ नहीं बिठाया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। ये कैसी बेबसी थी। हम माँ बेटी की, और खाला ने हमारे साथ कितना बुरा किया था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डालकर खुद अपने आशिक के पास चली गई थी, वो भी निकाह के बाद। अगर वो निकाह से पहले जाती तो कोई बात भी बनती थी, लेकिन निकाह करने के बाद जाने की क्या दुख बनती थी, ये मुझे समझ नहीं आया था। सोचती हूँ कि कुछ लोग कितने खुद गर्ज होते हैं अपने मकसद के लिए, ये तक नहीं सोचते कि पीछे उनके घर वालों का क्या हाल होगा। मुझे अम्मी ने अपने साथ गाड़ी में बिठाया। सब कह रहे थे कि अजीब लग रहा है, दुल्हन को दूल्हे के साथ होना चाहिए। अम्मी ने कहा कि दुल्हन की तबीयत सही नहीं है, इसलिए कह रही हूँ। चाचू ने भी कहा कि दुल्हन की तबीयत सही नहीं है तो कोई मसला नहीं है। हम लोग अपने घर आ गए थे। मेरी माँ मुझे शानों से थामकर चाचू के कमरे में लेकर आई। मेरा दिल किसी पत्ते की मानिंद लर्ज रहा था। अब आगे क्या होने वाला था मुझे नहीं मालूम। अम्मा ने सब मेहमानों से कहा कि वो लोग अपने घर वापस चले जाएं, काफी रात हो गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके सारे मेहमान चले गए। चंद एक ही रह गए थे जो जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो शायद रात हमारे घर रहना चाहते थे। कुछ रिश्तेदारों की आदत होती है बिला वजह दूसरों के घर रहने की। अम्मा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। मुझसे कहा कि मैं जा रही हूँ तुम्हारी खाला को ढूंढने। मेरे वापस आने तक घूंघट किए रखना। मैं तुम्हारे चाचू से कोई बहाना बना दूंगी और उनको बाहर रोक लूंगी किसी बहाने से। तब तक मैं अपनी बहन के ताकुब में जाती हूँ। मुझे अपनी माँ का दुख हो रहा था। वो बेचारी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। खाला की वजह से सिर्फ वही नहीं, हम सब भी फंस चुके थे, लेकिन किसी को इल्म नहीं था सिवाय मेरे और मेरी माँ के। न जाने चाचू से क्या बहाना बनाकर मेरी माँ ने उन्हें बाहर रोक लिया था। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन बाहर उनके बातें करने की आवाजें आ रही थी। वो कुछ बहस कर रहे थे। फिर चाचू ने कहा, ठीक है मैं नहीं जाता कमरे में अभी। जरूर अम्मा ने कोई माकूल बहाना बनाया होगा कि चाचू मान गए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे तसल्ली हो गई थी कि वो कमरे में नहीं आएंगे। मेरी माँ अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ी, मुझे इस हालत में छोड़कर, और मैं दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी। काफी देर तक मैं परेशानी से जागती रही। सारे दिन की थकावट थी। मेरी आंखें बोझल होती जा रही थी। मुझे नींद आनी शुरू हो गई। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को जगा कर रखा हुआ था, लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। नींद मुकम्मल तौर पर मेरे ऊपर हावी हो चुकी थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब और किस वक्त नींद की आगोश में चली गई थी। सच कहते हैं नींद तो सूली पर भी आ जाती है। सो मैं भी एक तरह से सूली पर लटक रही थी और सो गई थी। मैं इतनी गहरी नींद में चली गई थी कि मुझे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। अचानक मुझे नींद में महसूस हुआ कि कोई मुझे झंझोड़ कर मुझे जगा रहा है। मैं आंखें मलते हुए
उठी तो सामने अपने चाचू को देखकर मेरी रूह लड़ गई थी और मुझे देखकर उनके सर पर आसमान गिर गया था। ये इतना अजीब मंजर था कि मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। चाचू ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और मैं खड़ी हो गई, लहंगा संभालते हुए। चाचू ने नासमझी वाले अंदाज में मुझे देखा। उन्हें देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे अपनी दुल्हन की जगह देखकर उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। मैंने कुछ बोलना चाहा, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही चाचू ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। उनका थप्पड़ इस कदर जोरदार था कि मैं नीचे जमीन पर गिर गई थी एक झटके से। मैंने दुख से चाचू की तरफ देखा और अपने गाल पर हाथ रखा जो थप्पड़ की वजह से सुर्ख हो चुका था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। चाचू ने मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और फिर पूछा कि मैंने इतनी गिरी हुई हरकत क्यों की है, क्यों मैं उनकी दुल्हन की जगह आकर बैठ गई हूँ। वो मेरे शाने झंझोड़ झंझोड़ कर मुझसे सवाल कर रहे थे। उनकी हालत गैर थी और मैं मुसलसल रोए जा रही थी। मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मैं बोलती भी तो क्या बोलती। इतनी शर्मनाक हकीकत थी कि मैं अपने आप से भी इसका जिक्र करते हुए शर्मिंदा हो रही थी। नाइमा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी दुल्हन के कपड़े पहनकर तुम मेरे उजला अरूसी में बैठी हुई हो। कोई गैरत है या नहीं तुम्हारे अंदर? मैं तुम्हारा सगा चाचू हूँ। तुम्हें कुछ एहसास भी है? क्यों किया ये सब तुमने? और मेरी दुल्हन कहाँ है, मेरी बीवी राबिया? चाचू ने गुस्से से अपने बाल मुट्ठी में जकड़ लिए थे। वो पागल हुए जा रहे थे। उनकी बीवी कहाँ थी? उन्हें इस बात से भी शायद इतना मसला नहीं था जितना मसला अपनी बीवी की जगह अपनी सगी भतीजी को देखकर उन्हें हुआ था। मैं उनकी हालत समझ रही थी। जो उनकी हालत थी वही मेरे दिल की हालत थी। वो गुस्से से पागल थे और मैं शर्मिंदगी से। मेरा दिल कर रहा था इसी लम्हे जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ये ऐसा मंजर था जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी माँ और मेरी खाला मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में तन्हा छोड़कर जा चुकी थी। मैं खाला को कभी माफ नहीं करने वाली थी। अब इस हरकत के लिए मैंने कहा भाग गई है आपकी बीवी राबिया अपने पुराने आशिक के साथ, और मेरी माँ अपनी और आपकी इज्जत बचाने के लिए मुझे यहाँ बिठाकर चली गई है राबिया खाला को ढूंढने के लिए, मैंने रोते हुए कहा और मैं मुसलसल रो रही थी। चाचू अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गए। मुझसे कहा कि दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से और ये लिबास तब्दील करो। मैंने कहा मैं बाहर नहीं जा सकती, बाहर मेहमान हैं। आप मेरे कमरे से मुझे मेरे कपड़े ला कर दे। मेरी बात सुनकर उन्हें गुस्सा तो बहुत आ गया था, लेकिन जो भी था मुझे लिबास तब्दील करना था। वो मेरे कमरे में चले गए और मेरा सूट वहाँ से ले आए। मैं वो सूट लेकर वॉशरूम में चली गई और लिबास तब्दील किया। मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मैं जिंदगी में कभी इतना न रोई थी। बाहर कुछ मेहमान बैठे हुए थे। मैं बाहर नहीं जा सकती थी। मैं भी चाचू के सामने बैठ गई। चाचू फूट फूट कर रोने लगी बेबसी से। मैं उनकी हालत समझ सकती थी। मैंने उनसे कहा कि चाचू आप ना रोए, खाला आ जाएंगी। मेरी बात सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि नहीं है जरूरत मुझे तुम्हारी खाला की। मैं उसे शरीफ लड़की समझकर पसंद कर बैठा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो निकाह के बाद मेरे मुंह पर कालक मलकर किसी और के साथ चली जाएगी। और मुझे तुम्हारी माँ से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी दुल्हन की जगह तुम्हें बिठा देगी। अपनी बीवी को तो शायद मैं माफ कर भी दूं, लेकिन तुम्हारी माँ को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, जिसने मेरी मासूम सी भतीजी को इस्तेमाल किया अपनी इज्जत बचाने के लिए और उसकी जगह तुम्हें बिठा दिया। ये बात मेरे लिए तकलीफ दी है। वो कह रहे थे मैं समझ नहीं सकती, लेकिन मैं समझ सकती थी। जो उन पर गुजर रही थी वही मुझ पर गुजर रही थी। मेहमान सब सो चुके थे। अचानक दरवाजा खुला और मैंने देखा कि स्याह चादर में एक लड़की मेरी माँ के साथ खुफिया तरीके से अंदर दाखिल हुई। तो मैं और चाचू समझ गए कि वो कौन है। मेरी माँ ने कहा कि आ गई है तुम्हारी खाला इस कमरे में। चाचू को देखकर मेरी माँ समझ चुकी थी कि उन्हें सब पता चल गया है। मेरा तब्दील हुआ लिबास उन्हें सारी कहानी बता रहा था। चाचू की हालत भी देख चुकी थी और मैं आपको इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। भाभी, अगर आपकी बहन भाग गई थी तो इसमें मेरी भतीजी का क्या कसूर था? आपने अगर अपनी बहन को ढूंढना ही था तो ढूंढ लेती। मेरी भतीजी को क्यों इस आजमाइश में डाल दिया आपने? इसकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 17 साल। मैं उसे अपनी बेटी समझता हूँ, भतीजी से ज्यादा। और आपने मेरी बेटी के साथ ये सब किया। मेरे दिमाग की नसें फटने को आ रही थी सोच सोच कर। एहसास है आपको कि जब मैं कमरे में अंदर आया और मैंने अपनी दुल्हन की जगह अपनी भतीजी को पाया तो मेरे दिल पर किस तरह से खंजर चले थे, आप समझ नहीं सकती हैं। चाचू गुस्से से पागल हो रहे थे और अम्मा से कह रहे थे कि इस लड़की को क्यों लेकर आई हैं, मुझे इसे अपने साथ नहीं रखना है। मैं भला कैसे उस लड़की को अपने साथ रख सकता हूँ जो निकाह के बाद भाग गई थी अपने आशिक के साथ।
चाचू ने खाला की तरफ देखते हुए कहा जिन्होंने निकाब किया हुआ था। उन्होंने अपने चेहरे से निकाब हटा दिया। खाला ने कहा कि मैं भागी नहीं थी, मुझे अगवा किया गया था। मैं उस लड़के से ताल्लुक खत्म कर चुकी थी, मैं उसकी असलियत पहचान गई थी, इसलिए मैंने आपसे शादी की हामी भरी। मैं आपसे शादी पर बहुत खुश थी, लेकिन वो निकाह के बाद ही कमरे में दाखिल हुआ और गन पॉइंट पर मुझे अपने साथ चलने को कहा और कहा कि अगर मैं नहीं गई तो वो आपको जान से मार देगा। मुझे आपकी जान का खौफ था, मजबूरन मुझे उसके साथ जाना पड़ा, लेकिन वहाँ से भी मैं बचा कर निकल आई और रास्ते में मुझे आपी भी मिल गई। उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे मारना शुरू कर दिया कि मैंने उनकी इज्जत को दागदार कर दिया है। अब्बा की क्या हालत है ये मुझे अच्छे तरीके से मालूम है। मैं इन सबको आजमाइश में छोड़कर चली गई तो मैंने उन्हें भी सारी हकीकत से आगाह किया और मैं आपको भी सारी हकीकत बता रही हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती इतनी थी कि मैं उस शख्स की बातों में आ गई थी, लेकिन जल्दी मुझे एहसास हो गया कि वो इंसान नहीं है तो मैंने उसे छोड़ दिया। वो मुसलसल मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन मैं उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आई थी। लेकिन निकाह के बाद मैं वाकई खौफजदा हो गई थी उसके हाथ में पिस्तौल देखकर। वो एक सरफिरा इंसान था, कुछ भी कर सकता था, बड़ी महफिल में बदनामी होती। इसलिए मुझे मालूम था कि मेरे पीछे मेरी बाजी बात बना देगी, वो किसी को बिठा देगी बदनामी के खौफ से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरी भांजी को ही बिठा देगी। खाला ने अपनी सफाई पेश की। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चाचू का भी दिल बुरा हो गया था। भला एक मर्द जिसे मालूम हो कि शादी से पहले उसकी बीवी का किसी के साथ चक्कर है तो वो क्यों कर उस लड़की को कबूल करेगा। इतना बड़ा हादसा हो गया और हम चारों के अलावा किसी को मालूम नहीं था। चाचू मुझसे मोहब्बत करते थे। मैंने उनसे कहा कि खाला को माफ कर दें, उनसे गलती हो गई है। गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास था और वो भागी नहीं थी। उन्हें अगवा किया गया था। मैंने रोते हुए चाचू से कहा तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। मुझे कहा कि तुम क्यों रो रही हो, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं देख लूंगा सब। लेकिन मैंने कहा जब तक आप खाला को माफ नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगी। मैं मुसलसल रो रही थी। चाचू कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। खैर मैं अपने कमरे में आकर सो गई, लेकिन नींद में मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। मैं सुबह उठी तो सब कुछ नॉर्मल था। रात को जो कुछ भी हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला और यूं इज्जत बच गई थी। लेकिन शादी की पहली रात ही चाचू और खाला के रिश्ते में दरार आ चुकी थी। मैंने सुबह देखा तो चाचू का मूड खराब था, वो उदास लग रहे थे। खाला भी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। फिर से मेहमान आ गए थे और मेहमानों के सामने तो सबने अदाकारी करनी थी, सो हम चारों अपनी अदाकारी की जोहर दिखा रहे थे मेहमानों के सामने और हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। इज्जत सबसे ऊपर होती है। मुझे आज एहसास हो गया था मोहब्बत कुछ नहीं होती, जो कुछ भी होती है इज्जत होती है। हाँ, अगर मोहब्बत की कोई हकीकत है भी तो वो भी इज्जत के बाद ही आती है। सबसे पहले इज्जत है और अगर इज्जत ना रहे तो इंसान के पास कुछ नहीं रहता। जो कुछ भी हुआ हम सब की इज्जत बच गई थी, लेकिन अंदर से हम सब उदास थे। काफी अरसा चाचू और खाला के माबैन बातचीत बंद रही। वो दोनों सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बात करते थे और जैसे ही कमरे में जाते थे तो रात को चाचू दूसरे कमरे में चले जाते थे। चाचू से खाला का वजूद अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो रात को दूसरे कमरे में सोते थे। मैं रोजाना देखती थी कि तकिया उठाकर दूसरे कमरे में चले जाते थे जब सब घर वाले सो रहे होते थे। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता था। मुझे अपनी खाला का भी दुख था और चाचू का भी दुख था। खाला की छोटी सी गलती ने कितनी बड़ी कयामत बर्पा कर दी थी। आज उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनके माबैन मामला सही हो गए और चाचू को किसी तरह खाला ने मना लिया था। खाला बहुत खूबसूरत थी। ज्यादा अरसे चाचू उनसे दूर न रह सके। आज उनका एक प्यारा सा बेटा भी हो चुका है, लेकिन खाला मुझसे कहती है कि मुझे तुम्हारे चाचू ने अपने घर में जगह दे दी है, लेकिन आज भी मैं उनकी नजरों में गिरी हुई एक औरत हूँ। जमाने के सामने वो मुझे इज्जत देते हैं, लेकिन वो दिल से मेरी इज्जत नहीं करते। मेरी एक छोटी सी गलती ने कितना कुछ खराब कर दिया था। काश मैं ये सब ना करती तो आज इज्जत से रहती। चाचू ने खाला को दिल से माफ नहीं किया था। शायद उनका ज़र्फ इतना बड़ा नहीं था कि वो एक औरत की गलती माफ कर सकते। उन्होंने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए खाला को अपने साथ रखा था। वो दुबई से जितना कुछ कमा कर आए थे, बहुत सारा पैसा उन्होंने शादी पर खर्च कर दिया था। अब रोज रोज तो शादी होने से रही, लोग इज्जत को और गैर को औरत के साथ
منسوب کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ مرد کو زیادہ فکر ہوتی ہے اپنی عزت کی۔ چاچو کو بھی فکر تھی کہ دنیا کیا کہے گی کہ ان کی بیوی بھاگ گئی، انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ معاملات بہت نازک ہوتے ہیں۔ چاچو نے جو کچھ بھی کیا اپنے لیے کیا، وہ آج بھی خالہ سے دل میں ناراض ہیں۔ کاش چاچو بھی اپنا ظرف بڑا کرتے۔ جب عورت بڑی سے بڑی غلطی معاف کر سکتی ہے مرد کی، تو پھر مرد کیوں نہیں کر سکتا؟ اور یہی مرد چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دے، پھر وہ عورت کو کیوں معاف کرنے پر راضی نہیں ہوتا؟ میں بس اتنا کہوں گی کہ اس معاشرے کے مردوں کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔